Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is linguistic and I'm gonna tell you about the very important of linguistics. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Now I'm gonna start the topic Zenny Study Instruments Literature in Pakistan. Linguistics. First of all, introduction of linguistic definition, nature and scope, sociolinguistics, psycholinguistics, phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics. गाइस ये है लिंग्विस्टिक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. लिंग्विस्टिक की बुक से आपको इन टॉपिक्स के अलावा किसी और टॉपिक्स को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इन टॉपिक्स को रीड करें और एग्जाम में टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. So first of all, introduction of language. Language is the unique possession of man. It is God's special gift to mankind. Without language, human civilization as we know now, it would have remained an impossibility. Language is ubiquitous. It is present everywhere in our thoughts and dreams, prayers and meditations, relations and communications and rituals. लैंग्वेज एक यूनिक पोसेशन है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है. बगैर लैंग्वेज के सिविलाइजेशन, इंसानी सिविलाइजेशन आप जानते ही हैं कि कैसी होगी. इम्पॉसिबल, नामुमकिन होगी. लैंग्वेज वो हर जगह मौजूद है, हमारी सोच में, हमारे ख्वाब में, हमारी दुआओं में, हमारी मेडिटेशंस में, रिलेशंस में, कम्युनिकेशंस एंड रिचुअल्स में. लैंग्वेज इज आल्सो द मेकर और अनमेकर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. लैंग्वेज इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है. इट इज़ यूज ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स अ लाइफ बेटर एंड स्वीट. और लैंग्वेज का इस्तेमाल हमें इस तरह करना चाहिए कि हमारी जिंदगी बेटर और स्वीट बन जाए. विदाउट लैंग्वेज मैन वुड हैव रिमेन्ड ओनली अ डम एनिमल. और बगैर लैंग्वेज के इंसान एक डम एनिमल के बराबर है. इट इज़ अवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. और ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारी सिफ्त है कि हम लफ्ज़ों के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इसी वजह से हम जानवरों से मुख्तलिफ हैं. Definition of language. Since linguistics is the study of language, in a nutshell, language is an organized noise used in actual social situations. यहाँ तक कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की स्टडी है. नटशल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज्ड नॉइस और एक्चुअल सोशल सिचुएशंस होती हैं. डैट इज वाई इट हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज कॉन्टेक्चुअलाइज सिस्टमेटिक साउंड्स. और इसी वजह से ये कॉन्टेक्चुअलाइज सिस्टमेटिक साउंड्स की बिना पर डिफाइन किया जाता है. इन द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वॉल्यूम 13, लैंग्वेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ conventional spoken or written symbols by means of which human beings as members of social group. और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में वॉल्यूम 13 लैंग्वेज को इस तरह से कुछ कन्वेंशनल सिस्टम के तौर पर डिफाइन किया गया है. स्पोकन और रिटन सिंबल्स भी यूज की गई हैं जिनका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स सोशल ग्रुप में एक मेंबर है. First of all, definition of language is a primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols by Separate Language 1921. Next is language may be defined as the expression of thought by means of speech and sounds. Language may be defined as the expression of thoughts by means of speech and sound by Henry Sweet, The History of Language. Next is language is human, a verbal systematic symbolism, a means of transmitting information, a form of social behaviors with a high degree of conventions by J. Wetmore. Language. Truly, language is such a complex phenomenon that to define it in terms of a single level as knowledge, behavior, skills, habit, and an event or an object will not solve the problem of its definition. सच्चाई के तौर पर लैंग्वेज एक कम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिससे हम एक टर्म में एक सिंगल लेवल में तो डिफाइन कर ही नहीं सकते. हम इसे एक नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, हैबिट्स, इवेंट और कुछ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओवरऑल एक डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है. नन ऑफ द अबव डेफिनेशन इज परफेक्ट. और इनमें से कोई भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है. ईच ऑफ देम जस्ट हिंट्स एट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज. इन ये सारी डेफिनेशंस सिर्फ लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिंट्स हैं, कोई भी उसकी ओवरऑल डेफिनेशन नहीं है. Next is characteristic of language. First, language is arbitrary. Second, language is symbolic. Third, language is systematic. Fourth, language is vocal. Fifth, language is unique. एंड लास्ट इज लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज की डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा.
Next is linguistic. Very important topic is linguistic definition, nature and scope. Linguistic refers to the scientific study of language. Linguistic को हम scientific study, language की scientific study के नाम से जाना जाता है. The word linguistic is derived from the Latin word lingua meaning tongue and sticks meaning knowledge. और ये लिंग्विस्टिक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ लिंगुआ जिसका मानी है टंग, जुबान, और स्टिक मीनिंग नॉलेज, इल्म से आया है. अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, लिंग्विस्टिक रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जनरल और ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक को हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन जनरल और पर्टिकुलर लैंग्वेज भी कहा जा सकता है. डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स. Some of the definitions of linguistics are as under below. Linguistics tries to answer two basic questions. First, what is language? Second, how does language work? Jean Atchison. Linguistics बेसिकली दो क्वेश्चनों के आंसर चाहती है. फर्स्ट है कि लैंग्वेज क्या है और दूसरा कि लैंग्वेज किस तरह काम करती है. And the next definition of linguistic is concerned with the nature of human language, how it is learned, and what part it plays in the life of the individual and community. Linguistic इंसानी ज़ुबान की नेचर से कंसर्न करती है और ये किस तरह सीखा जाता है, किस तरह ये अपना लाइफ में अपना पार्ट प्ले करती है इंडिविजुअल तौर पर और कम्युनिटी तौर पर, दोनों के तौर पर ये किस तरह अपना पार्ट प्ले करती है, ये सब जानना लिंग्विस्टिक का है. एज पिट कॉर्डर. एंड नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक. ह्यूमन लैंग्वेज की साइंटिफिक जो स्टडी है वो लिंग्विस्टिक कहलाती है. विक्टोरिया ए फ्रॉमकिन. Linguistics is the scientific study of language. By this we mean language is general, not in particular language. Linguistic एक scientific study है language की. इसका मतलब ये है कि language general है, ना कि particular language. If we were concerned with studying an individual language, we would say I am studying French or English or whichever language we happen to be studying. अगर हम कंसर्न करते हैं कि स्टडी इंडिविजुअल लैंग्वेज है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रही हूँ या मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या मैं कोई भी लैंग्वेज सीख रही हूँ. बट लिंग्विस्टिक डज नॉट स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक इंडिविजुअल लैंग्वेज की स्टडी बिल्कुल भी नहीं है. इट स्टडीज लैंग्वेज इन जनरल और ये लैंग्वेज की पढ़ाई है जनरल तौर पर. The scope of linguistics. Linguistics involve a vast, complex and systematic study with different core areas such as phonology, phonetics, morphology, syntax and semantics. Linguistic का scope जो है वो बहुत वाज़िया, बहुत बड़ा, complex है स्टडी के तौर पर, जो कि मुख्तलिफ core areas जैसे कि phonology, phonetics, morphology, syntax and semantics के तौर पर डिवाइड किया गया है. इट इज़ ऑल्सो इंटरवेन्ड विद वेरियस अदर डिसिप्लाइंस एंड कंटेन्स फील्ड लाइक सोशल लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा. और ये वेरियस अदर डिसिप्लाइंस और फील्ड पर भी मुश्तमिल है जैसे कि सोशल लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक वगैरह वगैरह. लिंग्विस्टिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव वन एंड डिस्क्राइब लैंग्वेज इन ऑल एस्पेक्ट्स. लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, ना कि पर्सपेक्टिव स्टडी, और ये लैंग्वेज के तमाम पहलुओं को डिस्क्राइब करती है. इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट कीपिंग चेंजिंग एज लैंग्वेज इन ऑल एस्पेक्ट. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज को किसी भी एस्पेक्ट से चेंज कर सकता है. इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट कीप्स चेंजिंग एज लैंग्वेज चेंज. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज कर देता है लैंग्वेज को जिस तरह चेंज होना चाहिए. इट इज़ वेरी डायनामिक डोमेन ऑफ स्टडी. और ये स्टडी की बहुत ही डायनामिक डोमेन है. लिंग्विस्टिक इज अप्लाइड टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी. और ये लिंग्विस्टिक मुख्तलिफ स्टडी के फील्ड्स पे अप्लाइड किया जाता है एंड दिस मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लाइन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लाइन बनाती है. द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स एक्सटेंड फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू स्पीच थेरेपी इन मॉडर्न मेडिसिन. और मॉडर्न मेडिसिन में ये स्पीच थेरेपी और एंथ्रोपोलॉजी की लिंग्विस्टिक की एप्लीकेशन सिखाती है. And next is nature of linguistics. Linguistics is concerned with the nature of language and communication. Linguistic language की nature और communication के साथ भी concern करती है. It deals both with the study of particular language. और ये खास तौर पर particular language की study के साथ भी deal करती है. And search for general properties common to all language. It includes the following sub areas. First of all, phonetics, the study of production. Next, phonology, the patterning of the sounds. Third, morphology, the structure of sounds. Fourth, syntax, the structure of sentences. Fifth, semantics, meaning. Pragmatics, language in context.
And now very important topic is linguistic is social linguistic. Definition: language is the social culture geographical phenomena. Language एक social cultural और geographical phenomena है. There is a deep relationship between language and society. और लैंग्वेज और सोसाइटी के दरम्यान बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है. इट इज़ इन सोसाइटी डैट मैन एक्वायर एंड यूजेस लैंग्वेज. और ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आदमी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और सीखता है. सोशल लिंग्विस्टिक इज द डिस्क्रिप्टिव study of the effect of any and all aspects of society, including cultural norms, expectations, and context, on the way language is used and the effect of language use in society. Psycholinguistic एक descriptive study है of all society के तमाम पहलुओं की, जिसमें include हैं cultural norms, expectations, and context, और लैंग्वेज का इस्तेमाल भी और इसके सोसाइटी पे जो इफेक्ट्स हैं वो भी. सोशल लिंग्विस्टिक डिफर फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज. सोशल लिंग्विस्टिक थोड़ा डिफर है लैंग्वेज की सोशियोलॉजी से इन दैट द फोकस ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन द लैंग्वेज. मतलब कि साइको लिंग्विस्टिक सोसाइटी पे जुबान के जो इफेक्ट्स होते हैं उसे कहते हैं, वाइल द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज फोकसेज ऑन लैंग्वेज इफेक्ट ऑफ सोसाइटी. लेकिन इन इफेक्ट्स के क्या असरात होते हैं वो जो होता है वो सोशियोलॉजी है. वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज: फर्स्ट डियलेक्ट, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड पिडजिन, फोर्थ क्रियोल. Next, very important topic is psycholinguistics in linguistics. Psycholinguistics is the study of mental aspects of language and speech. Psycholinguistic study है speech और language के mental aspects की. It is primarily concerned with the ways in which language is represented and processed in the brain. और ये एक primarily concern करती है brain के processed और जिस तरह से language को ज़ाहिर किया जाता है इन तमाम तरीकों से. A branch of both linguistic and psychology. Psychology linguistic is the part of the field of कॉग्निटिव साइंस. और ये लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो साइकोलिंग्विस्टिक को मिला के कॉग्निटिव साइंस के फील्ड में अपना हिस्सा डालती है. द टर्म साइकोलिंग्विस्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन साइकोलिंग्विस्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जैकोब रॉबर्ट कैंटोर इन हिज 1936 बुक्स एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर. साइकोलिंग्विस्टिक की टर्म अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जैकोब रॉबर्ट कैंटोर ने 1936 में अपनी किताब एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर में रखी थी. द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय वन ऑफ कैंटोर स्टूडेंट निकोलस हेनरी प्रोनका इन 1946 आर्टिकल लैंग्वेज एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स. और ये टर्म तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जैकोब रॉबर्ट कैंटोर ने बनाई थी, लेकिन देन ये पॉपुलराइज्ड हुई इसी साइकोलॉजिस्ट के एक स्टूडेंट था निकोलस हेनरी प्रोन का. 1946 में ये एक आर्टिकल लैंग्वेज और साइकोलिंग्विस्टिक आ रिव्यू इस नाम से ये पॉपुलराइज्ड हुई थी. द एमरजेंस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक एज एन एकेडमिक्स डिसिप्लाइन इन जनरली लिंक टू एन इन्फ्लुएंशियल सेमिनार एट कर्नल यूनिवर्सिटी इन 1951. और 1951 में कर्नल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था जिसके नतीजे में साइकोलिंग्विस्टिक को इमरजेंसी एंड एकेडमिक्स डिसिप्लिन के तौर पर जनरली लिंक किया गया था. साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ द मेंटल मैकेनिज्म दैट मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज लैंग्वेज. साइकोलिंग्विस्टिक एक मेंटल मैकेनिज्म है जो लोगों को इस काबिल बनाती है कि आप लैंग्वेज को यूज करें. इट इज साइंटिफिक डिसिप्लिन हुज गोल इज अ कोहेरेंट थ्योरी ऑफ द वे इन विच लैंग्वेज इज प्रोड्यूस्ड एंड अंडरस्टैंड. और ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसका गोल है थ्योरी को कोहेरेंट करना और जिसमें लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है. सेज एलन गरहनम इन हिज बुक. Phonetics. Next topic is phonetics. Phonetics is a branch of linguistics that focuses on the production and classification of the word, speech, sound. Phonetics linguistic की ही branch है जो focus करती है speech sound, दुनिया में speech sound की classification और उसकी production पे. The production of speech looks at the interaction of different vocal organs, for example the lips, tongue and teeth to produce particular sound. ये तीन चीज़ें पर्टिकुलर साउंड्स को प्रोड्यूस करती हैं और इन्हीं तीन चीज़ों पर लिप्स, टीथ एंड टंग पर फोनेटिक्स टिकी है. By classification of speech, we focus on the sorting of speech sounds into the categories which can be seen in what is called the International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet क्या होते हैं? IPA क्या है? The IPA is a framework that uses a single symbol of describe each distinct sound in the language and can be found in dictionaries and in textbooks worldwide. पूरी दुनिया में टेक्स्ट बुक और डिक्शनरी में जो वर्ड्स सर्च किए जाते हैं, जिस सिंबल्स के साथ सर्च किए जाते हैं वो IPA है. फॉर एग्जाम्पल द नाउन फिश
जैसा कि फिश एक लेटर है, 4 लेटर्स हैं इसमें, FISH, बट अगर हम इसे IPA में कन्वर्ट करते हैं, IPA प्रेजेंट दिस एज 3 साउंड्स, लेकिन IPA इसको 3 आवाज़ों में शो करेगा, जैसे कि लिप्स, टंग एंड टीथ। इसी तरह फिश को 3 आवाज़ों में शो करेगा, जैसे कि F, I एंड स्टैंड फॉर द SH साउंड, यानी कि फिश। Phonetics as an interdisciplinary science has many applications. This includes its use in the forensic investigation when trying to work out whose voice is behind a recording. Another use it is its role in language teaching and learning, either when learning a first language or when trying to learn a foreign language. This section of the website will look at some of the branches of phonetics, such as well as the transcription of speech and some history behind phonetics. फोनेटिक्स को बहुत सारी एप्लीकेशंस में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के तौर पर भी देखा जाता है, और इसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड है। इसमें लैंग्वेज की टीचिंग, लर्निंग, फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए, कैसे ट्राई किया जाए, फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए, ये सारे पहलू फोनेटिक्स लैंग्वेज में इंक्लूड है। फोनोलॉजी, नेक्स्ट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न्स दैट अकर विद इन लैंग्वेज। फोनोलॉजी स्टडी साउंड का पैटर्न है लैंग्वेज के दौरान, लैंग्वेज में। सम लिंग्विस्टिक इंक्लूड फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड विद इन द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी। मतलब कि कुछ लिंग्विस्टिक्स हैं इसमें फोनेटिक्स, जैसे कि है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड, स्पीच साउंड है। इसी तरह फोनोलॉजी भी है स्टडी। फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड विद रेफरेंस टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्निंग। फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जो कंसर्न करती है स्टडी स्पीच से, साउंड से, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्निंग में रेफरेंस दिया जाता है। द एडजेक्टिव फॉर द टर्म इज फोनोलॉजिकल। A linguist who specialize in phonology is known as pathologist। और इसी तरह एडजेक्टिव टर्म है फोनोलॉजिकल। एक लिंग्विस्टिक स्पेशलाइज फोनोलॉजी नोन एज पैथोलॉजिस्ट। द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज फोनोलॉजी। इस वर्ड को प्रोनाउंस्ड किया जाता है फोनोलॉजी। द टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक साउंड और वॉइसेस, और ये टर्म आई ग्रीक वर्ड से साउंड और वॉइसेस। इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन फोनोलॉजी कैन लॉर्ज ऑब्जर्वर दैट फोनोलॉजी इज अबाउट डिफरेंस ऑफ मीनिंग सिग्नल्ड बाय साउंड। As discussed below, the boundaries between the fields of phonology and phonetics are not always sharply defined, और इन्हें हम sharply तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते फोनोलॉजी को और फोनेटिक्स को। Next is morphology. Morphology is the study of the internal structure of words and forms, a core part of linguistic study today. आज के दौर में linguistic study के core part में morphology को internal structure, words और forms का कहा जाता है। The term morphology is Greek and is a makeup of morph meaning shape, form and ology which means the studying of something. टर्म मोर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जबान से आया है, जिसका मतलब है मोर्फ। मोर्फ यानी कि स्टार्टिंग वर्ड्स मोर्फ, इसका मतलब है शेप या फॉर्म, शक्ल। ओलॉजी का मतलब है किसी भी चीज को स्टडी करना, किसी भी चीज की जिसको हम स्टडी करते हैं उसकी शक्ल मोर्फोलॉजी कहलाता है। मोर्फोलॉजी एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स वाज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1859 बाय द जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट सेचलिचर हु यूज्ड द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मोर्फोलॉजी एक सब डिसिप्लाइन है लिंग्विस्टिक का, जिससे फर्स्ट टाइम 1951 में Morphology is the branch of sociolinguistics and one of the major components of grammar that studies word structures, especially regarding morphemes, which are the smallest unit of language. Morphology linguistic एक branch है जो grammar के components, major components में से एक है, जैसे कि study word structure की study और ख़ास तौर पर regarding morphemes, which are the smallest unit हैं language के. They can be base words or components that form words, such as affixes, and the adjective form is morphological और इसके adjective form है morphological. Syntax. Next is syntax. In linguistics, syntax refers to the rules that governs the way in which words combine to form phrases, clauses and sentences. Linguistic में syntax को rules कुछ होते हैं governs के, जो कि हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरह हम अल्फाज को combine करें, किस तरह phrases, clauses, sentences को किस तरह हम combine कर सकते हैं. The term syntax comes from the Greek meaning arranged together. और syntax का जो Greek meaning है और syntax का जो Greek ये लफ्ज
ग्रीक से आया है, जिसका मतलब है कि कुछ लफ्जों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को इकट्ठा करना, अरेंज करना। द टर्म इज आल्सो यूज टू मीन द स्टडी ऑफ द सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज, और ये टर्म यूज होती है स्टडी ऑफ सिंटैक्स प्रॉपर्टीज लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज के साथ। इन कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट द टर्म refers to the proper ordering of symbols and codes so that the computer can understand what instruction are telling it to do it। और ये इस टर्म को यूज करते हुए हमारा लैपटॉप कंप्यूटर यूज होता है, और इसी वजह से ये जानता है जब हम कोई कोड या सिंबल सिंटैक्स का ओपन करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाता है कि किस तरह जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम किस तरह इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करें। Syntax. Syntax is the proper order of word in phrase or sentence. Syntax is the tool used in writing proper grammatical sentences. Next, native speakers of a language learn correct syntax without realizing it. Then the complexity of a writer or speaker sentences write the formal. The complexity of a writer or speaker sentences creates a form. Semantics. The field of linguistics is concerned with the study of meaning in language. Semantics एक ऐसा लिंग्विस्टिक का फील्ड है जो लैंग्वेज के मीनिंग स्टडी के साथ कंसर्न करता है। Linguistic semantics has been defined as the study of how language organize and express meaning. Linguistics सेमेंटिक्स इस तरह डिफाइन किया जाता है कि किस तरह लैंग्वेज ऑर्गेनाइज की जाती है और मीनिंग्स में एक्सप्रेस की जाती है। द टर्म सेमेंटिक्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर साइन वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच लिंग्विस्ट मिचेल ब्राइल 1832 to 1915, who is commonly regarded as the founder of modern semantics. टर्म सेमेंटिक्स ग्रीक वर्ड साइन से है जो फ्रेंच लिंग्विस्ट मिचेल ब्राइल ने कॉइन की थी, और कॉमनली रिगार्ड किया जाता है कि ये ना मॉडर्न सेमेंटिक्स के फाउंडर हैं। Odle says R.L. Trask in Key Concepts in Language and Linguistics, some of the most important work in semantics was being done from the late 19th century onwards by philosophers rather than by linguistics. Odle कहते हैं कि R.L. Trask की concepts जो हैं लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक के, वो बहुत डन किया गया 19th century onwards के साथ, or philosopher then rather than by linguistic. Over the past 50 years, however, approaches to semantics have project is now one of the liveliest areas in linguistics. और 25 सालों से ज़्यादा अप्रोच जो सेमेंटिक्स की थी वो प्रोलिफरेटेड। गाइस, ये थे लिंग्विस्टिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं टॉपिक को रीड करें, इन्हीं टॉपिक के MCQs को देखें, इन्हीं टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, तो आपकी स्टडी लिंग्विस्टिक की तैयारी कंप्लीट। इन्हीं टॉपिक को याद करते हुए आप एग्जाम्स में टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।